باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید سے کہ آپ یقیناً بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں آپ کا 5واں لیکچر ہے۔ اور آج ہم اپنی کتاب کا دوسرا پورشن سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچروں میں آپ نے مضامین پڑھے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کتاب کو مختلف پورشن میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں مضامین ہیں، آپ کے ناول شامل ہیں اور سفر نامے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکاتیب اور ایک کہانی بھی شامل کی گئی ہے۔ تو آج اب دو مضامین پڑھنے کے بعد آج ہم ایک نیا پورشن ناول کا شروع کریں گے۔ خدیجہ مستور کا تعارف ہے جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ناول ہمیں دیا گیا ہے وہ خدیجہ مستور کا ناول ہے آنگن۔ خدیجہ مستور کا تعارف آپ کے پاس پیج نمبر 53 پہ موجود ہے۔ اپنی کتاب کے پیج نمبر 53 کھولیں۔ خدیجہ مستور اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی ناول نگار، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ان کا ناول شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے آنگن۔ پہلے خدیجہ مستور کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ خدیجہ مستور کی پیدائش ہوئی ہے جی 12 دسمبر 1927 اور وفات ہے 1982، یعنی تاریخ پیدائش 12 دسمبر 1927 اور وفات ہے 1982۔ خدیجہ مستور بریلی کے ایک پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ انور جہاں خود ایک اچھی شاعرہ اور مضمون نویس تھی۔ اس طرح دونوں بہنوں خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور کو علمی اور ادبی ماحول ملا۔ یہ دونوں بہنیں جو ہیں بہت اچھا لکھنے والی اور ناول نگار، خوبصورت لکھنے والی ناول جو ہیں وہ انہوں نے تخلیق کیے ہیں۔ خدیجہ کی ابتدائی زندگی سخت مشکلات میں گزری۔ انہوں نے ادبی زندگی کی ابتدا 1936 میں افسانہ نگاری سے کی، لیکن ان کی اصل شہرت آدم جی انعام یافتہ ناول آنگن کی وجہ سے ہے۔ اس ناول میں انہوں نے سماجی حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے ایک پورے عہد کی آویزش اور کشمکش کو بڑی کامیابی اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قیام پاکستان کے پس منظر میں بے شمار ناول اور افسانے لکھے جا چکے ہیں، لیکن آنگن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ایک متوسط مسلمان خاندان کی سماجی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ناول کا کینوس اور پلاٹ بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناول و صحت کی سماجی اور معاشی ناہمواریوں کی ایک مکمل اور سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک عام گھرانے کی کہانی ہے جو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کی گئی ہے۔ خدیجہ نے اپنی کہانیوں میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی جو عورتوں کو ایک خاص جبر کے تحت رکھتا ہے۔ ان کا انداز تحریر بہت سادہ اور دلکش ہے۔ ان کی تصانیف میں آنگن، زمین، بوچاڑ، چند روز اور تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا جی، خدیجہ مستور کا ناول آنگن سے یہ اقتباس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے پورا ناول تو کتاب میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کا کچھ پورشن، کچھ حصہ جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے اس ہماری سیلیبس میں، ہمارے کورس میں۔ آنگن جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت ناول جو خدیجہ مستور کو، جس پر آدم جی کا ایوارڈ بھی ملا، انہوں نے قیام پاکستان کے موقع پر جو
लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो उसका पस मंज़र था उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में, और जो घर का जो एक मुतवस्सित तबके के घर के हालात थे उस वक्त के, यानी उस तहरीक ने किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया, इस चीज़ को उन्होंने मौजू बनाया हुआ है। ये पहले आपको आंगन का थोड़ा सा तारुफ बताया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे आप तो यानी आपको पता चलेगा कि अभी जो उसके बाद आपकी कहानी, यानी जो आपको पोर्शन दिया गया है आपको उससे किताब से, उससे पहले आपसे किताब से तारुफ करवाया गया है नावल से, ताकि आपको पता चले कैसा नावल क्या था। खदीजा मस्तूर का नावल आंगन एक किरदारी नावल है। ये नावल तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक के ज़माने पर मुहित है। आलिया इस नावल का मरकज़ी किरदार है और इसी मरकज़ी किरदार के ज़रिए पूरी कहानी क़ारी तक पहुँचती है। आलिया अपनी सरकारी मुलाजिम बाप की मौत के बाद अपने बुग्याल की आबाई घर में अपनी अम्मा के साथ आ जाती है। छन्नी आलिया की चचाजाद बहन है। चमी की माँ मौत के बाद इसके बाप चमी की माँ की मौत के बाद इसका बाप दूसरी शादी कर लेता है और इसे अपने बड़े भाई के घर छोड़ कर चला जाता है और कभी पलट कर खबर नहीं लेता। ये अब आपको जो इसमें इस पोर्शन में या इस इक़्तिबास में आपके किरदार को आएंगे, उनका थोड़ा थोड़ा तारुफ भी आपको बता दिया गया है ताकि आपको समझ आए कि किसका क्या रिश्ता है, क्योंकि एक घर की कहानी है। अच्छा, बस कभी पलट कर खबर नहीं लेता और बस हर महीने बराए नाम खर्चा भी भेज देता है। गोया हालात का जबर आलिया और छवि को बड़े चचा के आंगन में ले आता है और यूं वो उस आंगन का हिस्सा बन जाती है जो मुल्क की तकसीम का गवाह है, क्योंकि इस आंगन में उस दौर के मुख्तलिफ सियासी ख्यालात के नुमाइंदे चलते फिरते नजर आते हैं। मसलन बड़े चचा कट्टर कांग्रेसी सोच के मालिक हैं, जबकि जलील भैया और शमी इस दौर के आम मुसलमान नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले किरदार हैं। आलिया की अम्मा ज़हनी तौर पर अंग्रेज नवाज किरदार है। करीमन हुआ कोई सियासी या नजरियाती किरदार तो नहीं, लेकिन मुसलमानों की अजमत रफ्ता की यादगार जरूर है। इस नावल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उस दौर के तमाम तर सियासी मार्कों को एक छोटे से आंगन में मुतहर्रिक किरदारों के जरिए पूरी शिद्दत के साथ दिखाया गया है। ठीक है जी, इस आंगन में क्या ये इस नावल का जो है, अगर हम कहें कि बुनियादी कहानी क्या है, तो बुनियादी कहानी ये है कि किस तरह तहरीक पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान के हालात जो हैं वो क्या थे, उन्होंने इस हालात में लोगों की आम जिंदगियों पर क्या असर डाला और किस तरह मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक ही घर में रहते हुए मुख्तलिफ ख्यालात के हामिल होते हैं। एक ही घर में कोई जो है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता है, कोई जो है वो कांग्रेसी होता है, कोई अंग्रेज़ों को पसंद करता है, कोई जो है वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी गुजार रहा होता है, किसी के अपने मुश्किलात होते हैं। यानी तमाम का जो है पस मंज़र बयान किया गया है। तो चलिए जी, आंगन की पढ़ाई शुरू करते हैं। इम्तिहान के बाद जब आलिया ने सर उठाया तो बाहर जा चुकी थी। हवाओं में गर्मी बस गई थी। नाली से ढेरों पानी क्यारी में जाता, मगर फूलों पर रौनक ना थी। पत्तियां मुरझा मुरझा कर झड़ती रही, मारे प्यास के नन्ही नन्ही चिड़ियों की चोंचें खुली रहती और चूल्हे के पास काम करने वाली करीमन बुआ के हाथ से पंखियां ना छूटती। शाम को सहन ठंडा करने के लिए कितनी ही पानी की बाल्टियां छिड़क दी जाती थी, फिर भी सुकून न मिलता। सारा माहौल चल रहा था। ठीक है जी, गर्मी का मौसम बयान किया जा रहा है कि गर्मी जो है वो पूरे जोरों पर थी। जब आलिया के इम्तिहान खत्म होते हैं तो वो देखती है कि हर तरफ गर्मी जो है वो अपना जोर दिखा रही है, और गर्मी को कम करने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारा माहौल जैसे गर्मी की वजह से चल रहा हो। इन बेकार वीरान और गर्म दिनों में बड़ी चच्ची ने छन्नी की जहेज के 5 जोड़े कपड़े उसके सुपुर्द कर दिए थे।
दोपहर में जब सन्नाटा छा जाता तो मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती। बड़ी चच्ची से तो अब कुछ भी ना होता था, हर वक्त बुझी बुझी सी रहती। इनका किसी काम में जी न लगता और अम्मा तो वैसे भी छम्मी को बर्दाश्त ना करती। इनका बस चलता तो जहेज के कपड़ों से छम्मी का कफन सी डालती। बस एक आलिया रह गई थी जो बड़े खुलूस से जहेज सी रही थी और हर वक्त छम्मी के अच्छे नसीब होने की दुआएं कर रही थी। ठीक है जी। उधर छन्नी थी कि अपने नसीब की बाजी लगने से बेखबर सारे घर में ऊधम गाती फिर रही थी। यानी उसे पता ही नहीं था कि उसके जहेज के कपड़े सिल रहे हैं या उसकी किस्मत का फैसला जो है वो कर दिया गया है, बल्कि वो बड़ी लौबाली सी लड़की है ये छन्नी। और खुश रहने वाली और अपने दुनिया में मस्त रहने वाला किरदार जो है वो हमें नजर आता है छन्नी का। बड़ी चचा को देखकर इसे पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। अंग्रेजों को वो बेनुक्त सुनाती। बेनुक्त सुनाना मुहावरा है, यानी बहुत बुरा भला कहना, बगैर रोके हुए उसको जब भी वो अंग्रेजों को याद करती थी बहुत बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करती थी। कि अम्मा के छक्के छूट जाते और जब सबको चिढ़ाकर वो थक जाती तो फिर आलिया के पास आ घुसती। यानी उसे मजा आता था अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ जो है वो अंग्रेजों की हामी है, लेकिन फिर भी वो और चचा जो है वो उसके पाकिस्तान के हक में नहीं होते। चचा मुस्लिम वो उसका ये ख्याल होता है, कांग्रेसी होते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल नहीं करना चाहिए। तो इसको और शम्मी जो है खुद पाकिस्तान के हक में होती है, खुद मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी सपोर्टर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर मुख्तलिफ अवकात में वो दूसरों को तंग करती है और उनको छिड़ाती है। और कोशिश होती है कि वो दूसरों को जो है जो जिसको जो पसंद है उसके सामने उसकी बुराइयां करें। जब थक जाती तो फिर आलिया के पास आ घुसती। है बच्चिया, ये किसके कपड़े सिल रहे हैं कितने प्यारे, अल्लाह कितने प्यारे हैं, ये कौन पहनेगा, वो इतला कर पूछती, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि उसकी जैसे कैसे उसको सवाल करती। इसी के हैं छम्मी। आलिया बहाना करती कि कहीं सच्ची बात का पता न चल जाए। एक दुपट्टा हमें दे दीजिए, इसमें से लचका लगाकर ओढ़ूंगी। वो चुने हुए दुपट्टे को उठाकर मरोड़ने लगी। देखिए मेरा दुपट्टा किस लत्थे हो रहा है, कैसे लत्थे हो रहा है, यानी कितना खूबसूरत लग रहा है। छोड़ो चटनी, सुनट खुल जाएगी। आलिया दुपट्टा छीनने लगती। आखिर ये है किसके, जहेज के। बेचारी बता भी नहीं सकती, जबान थकती है। हमारे तजस्सुस की छन्नी डरने पर आमादा हो जाती। यानी वो पूछना चाह रही थी लेकिन आलिया जो है उसे बताती नहीं थी। ठीक है जी, आलिया जो है वो सिर्फाने की कोशिश कर रही थी और चम्मी को ये तजस्सुस था कि वो पता लगाए कि आखिर ये कपड़े किसके सिल रहे हैं। मैं तुमको पीटूंगी जो मुझसे लड़ी। आलिया बड़े प्यार से अपनी बड़ाई का रोब डालती और छम्मी हंसने लगती। आज दोपहर में कैसा सन्नाटा है। वो छम्मी के दुपट्टे में किरण टाँक रही थी। वो अपने मुस्तकबिल के ख्यालों को जानकर नाजुल किए जा रही थी। अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा, अगर पास हो गई तो ले दे के एक ही बात रह जाती है कि बीटी करे, उस्तादी बन जाए। मगर वो बीटी कर सकेगी? क्या अम्मा इसे अलीगढ़ जाने देगी? और क्या मामू इसे अतिरिक्त रुपए भिजवाते रहेंगे? यानी वो तमाम सवालात थे जो उसके जहन में उस वक्त चल रहे थे। जो उसका ख्याल था कि अगर वो पास हो जाती है तो वो क्या करेगी, वो फेल हो जाती है तो क्या होगा उसका। हाई स्कूल के अहाते में आम के दरख्तों पर कोयल मुसलसल चीखने जा रही थी और पास के कमरे में सोई हुई नजमा फुफो के खर्राटे छत पर सर पर उठाए हुए थे। कि इसका जी चाहा कि वो भी सो जाए और इतने खर्राटे ले कि नजमा फूफी अपनी बेफिक्र नींद से चौंक पड़े और फिर सारे दोपहर बैठकर काट दे। ठीक है, उसको भी देख रही थी कि किसी को इस तरह खर्राटे ले रही थी, उसका भी दिल कर रहा था कि वो उसी तरह खर्राटे लेकर सो जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। शाम को जब वो नीचे उतरी तो करीमन बुआ सहन में पानी छिड़क रही थी। जमील भैया लोहे की कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे और बड़े चचा बरामदे में टहल टहल कर जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। इनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सुर्ख हो रही थी। बड़ी चची सबसे बेनियाज तख्त पर बैठी आलू छील रही थी।
बड़े चचा, आपकी तबीयत कैसी है? सर में दर्द है बेटी। बड़ी चच्ची ने छूकर अपने शोहर की तरफ देखा। करीमन हुआ, जल्दी से पलंग बिछा दो, बस सहन ठंडा हो गया। नास चाहे इस तरफ का। करीमन हुआ बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा उठा कर आंगन में बिछाने लगी। अब घर का माहौल है जिनके, तो आपको सारा कुछ दिखा रही है किस तरह घर में के आंगन जो है वो किस तरह मुख्तलिफ काम उसमें हो रहे हैं और लोग जो है वो किस किस हालत में उस वक्त घर के आंगन में मौजूद है। बड़े चचा जमील भी भैया की तरफ करवट लेकर लेट गए। आलिया को सख्त कोफ्त हो रही थी कि बेटा पास बैठा है मगर बाप को पूछता तक नहीं। कितना अरसा हो गया दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। ये बाप बेटा जो है क्योंकि अलग अलग सोच रखने वाले थे। बाप जो है वो कांग्रेसी था, बेटा जो है मुस्लिम लीगी था, वो आज़ादी चाहता था। लिहाजा बाहर के सियासी माहौल ने इनके घर के अंदर के माहौल को भी बदल कर रख दिया था। उनके ख्यालात मुख्तलिफ थे एक दूसरे से, इसलिए वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बैठे रहते हो? बड़ी चची ने जमील भैया की तरफ देखा। नौकरी छूट गई है अम्मा, सरकारी दफ्तरों में सियासी लोगों को गुजारा मुश्किल ही से होता है। आलिया ने जलकर जमील भैया की तरफ देखा। मुस्लिम लीगियों की खप तो अंग्रेज बहादुर की तरफ ही में होती है। बड़े चचा ने करवट बदले बगैर कहा। आपका ख्याल गलत है। असल बात तो ये है कि जब कांग्रेसी सिफारिश कर देते हैं तो फिर नौकरी मिल जाती है। जमील भैया भी क्यों चुप रहते? ठीक है जी, अब दोनों में बहस होती है। एक मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता है, दूसरा जो है वो कांग्रेस को कर रहा है। तो दोनों बाप बेटा जो है वो आपस में बहस और बहस में पड़ जाते हैं। हम्म। बाप बेटे दोनों अपनी अपनी तंज की आग में खुद जल कर खुद ब खुद बुझ गए और दोनों ने इस तरह मुंह फेर लिया जैसे एक दूसरे को बात करने के लायक ना समझ रहे हों। आलिया ने जमील भैया को मलामत भरी नजरों से देखा और बड़े चचा के पास बैठकर हौले हौले से सलहाने लगी। अम्मा गीले बाल झटकती हुई उसे खाने से निकल आई और सबको एक जगह जमा देखकर बड़ी बेजारी से पानदान उठाकर आखिरी पलंग पर जा बैठी। अब क्या होगा? बड़ी चची ने जमील भैया से पूछा। फिक्र ना कीजिए अम्मा, एक बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, आप सबके ठाठ हो जाएंगे। शकील की फिर कोई खैरियत मालूम हुई या नहीं? बड़ी चची ने अचानक पूछा। अम्मा इसकी फिक्र ना कीजिए, किया कीजिए, वो बड़े मजे में है, यहाँ के सारे दुख दर्द भूल गया होगा। जमील भैया ने फिर सफाई से झूठ बोला। उन्होंने आलिया को सारी हकीकत बता दी थी कि इन्हें शकील का पता तक नहीं मालूम। शकील जो है ये जमील का बड़ा भाई होता है जो घर छोड़कर चला जाता है और फिर उसकी वालदा की बेटे के जाने के बाद उसकी वालदा की तबीयत जो है वो बहुत खराब रहती है और वो अक्सर उसका पूछती रहती है और जमील उसको कहता है कि मैं राब्ते में हूँ उससे और वो मुझे पता है, वो बड़ा खुश है। हालांकि जमील को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता और उसके बारे में आलिया को उसने बता दिया होता है कि मुझे जमील शकील का जो है वो कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गया है। खैर जहाँ रहे खुश रहे, बड़ी चची ने ठंडी आह भरी। बड़े चचा, आपका पलंग बाहर चबूतरे पर बिछवा दूं? खुली फिजा में दर्द कम हो जाएगा। आलिया ने पूछा। दो मुख्तलिफ खटर नजरियात एक जगह जमा हो जाते तो उसे डर लगने लगता। शकील के जिक्र को परेशान थी। जमील भैया मौका टूटने का नाम ना लेते। मैंने उसे ये डर था कि अगर यहाँ पे चचा और जमील भाई जो है वो बैठे रहेंगे तो उनमें लड़ाई ना हो जाए, इसलिए उसने उसको उससे पूछा कि आपका पलंग जो है वो बाहर चबूतरे में बिछवा देती हूँ। हाँ वही लगवा दो तो बड़ा अच्छा हो। बड़े चचा ने इसे ममनूयत से देखा और फिर बाहर जाने के लिए उठ गए, एहसान मंद होकर या एहसान भरी नजरों से। गली में कांग्रेसी बच्चों का जुलूस निकल रहा था। वो बड़े बेहंगम तरीके से शोर मचा रहे थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान नहीं बटेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है जी, उस जमाने में क्योंकि आज़ादी का दौर करीब था
तो जल से जुलूस जो है वो निकल रहे होते थे, कभी बच्चों के कभी बड़ों के। तो इस वक्त भी कांग्रेस की बच्चों का जो है वो एक जुलूस निकल रहा था, कांग्रेस के हाथ में नारे लगा रही थी। बड़े चचा के होंठों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वो तो कांग्रेसी थी, तो वो इस जुलूस को देखकर वो खुश हो गई। उनकी आंखें चमक रही थी। जमील भैया हंस रहे थे और अम्मा जो बड़ी देर से चुप बैठी छालियां काट रही थी, आखिर बोल ही पड़ी, पहले आज़ादी तो मिल जाए, फिर सब होता रहेगा। और फिर ये हिंदुस्तानी लोग पहले हुकूमत करना भी तो सीख लें, क्योंकि ये जो है ये खुद अंग्रेज़ों की तरफदार है और समझती हैं कि अंग्रेज़ों को नहीं जाना चाहिए। लिहाजा वो कह रही हैं कि पहले ये हिंदुस्तानी हुकूमत तो सीख लें, फिर ये सोचे कि अंग्रेज़ चले जाएंगे और हम हुकूमत करेंगे। उनको भी गुस्सा आ जाता है ये जुलूस देखकर। सब चुप रहे, किसी ने अम्मा को जवाब न दिया। बाहर बड़े चचा का बिस्तर लग गया था, वो चले गए और जमील भैया फिर उंगलियां मरोड़ने लगे। जुलूस का शोर दरवाजे के करीब होता जा रहा था। चम्मी दीवानों की तरह भदर भदर करती अपने कमरे से निकल पड़ी। अगर मेरे दरवाजे के पास से जुलूस निकला तो ढेले मार दूंगी, कीले मारूंगी। वो दरवाजे की तरफ लपकी। अब चम्मी जो है क्योंकि मुस्लिम लीगी है, लिहाजा उससे गुस्सा आ जाता है जब वो देखती है कि उसके घर के सामने से जो है वो जुलूस गुजर रहा है कांग्रेस का। तो वो ये कहती है कि अगर मेरे घर के सामने से ये गुजरेंगे तो मैं उनको मारूंगी, और मैं जो है उस जुलूस को अपने घर के सामने से नहीं गुजरने दूंगी। और इस पर उसको जो है गुस्सा आता है कि क्यों बच्चे उतनी ऊंची ऊंची आवाज में जो है वो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रही है। खबरदार जो आगे, अब वो दरवाजे के जाके क्या कहती है, खबरदार जो आगे बढ़े, बैठ बैठ जाओ चुपके से। आगे बढ़ी, बैठ जाओ चुपके से। जमील भैया जोर से गरजे और चुपी जाने किस रोब में आ गई। इसने जमील भैया को घूर कर देख और बड़बड़ाने लगी, हूँ, बड़े आए बेचारे, आज ही मुस्लिम लीग का जुलूस ना निकाला हो, मेरा नाम भी छम्मी नहीं। जब छम्मी बाहर जाने लगती है तो जमील भैया जो है वो उसको ऐसा करने से रोक देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम आराम से बैठ जाओ, तुमने कहीं नहीं जाना, और तुम जो है बाहर निकल कर इनको नहीं रोको। जबकि छवि जो है उसकी कोशिश होती है कि वो जाकर बाहर के कांग्रेस के नारे लगाने वालों के साथ लड़ बढ़ जाए। और फिर वो क्या कहती है कि मैं देखती हूँ, मैं भी इनके बदले में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालूंगी। जुलूस दरवाजे के पास से गुजर गया तो जमील भैया कपड़े बदल कर बाहर चले गए। छम्मी जैसे इनके बाहर जाने का इंतजार कर रही थी, जमील भैया की जाती की बुर्का ओढ़ कर खुद भी बाहर निकल गई। आलिया इसे ना रोक सकी। हमारे जमाने की बात है, पहले तो जब भी बेआइया पहले जब भी बेया घरों से निकलती तो दो दो चार चार मामाएं साथ होती थी। करीबन बुआ छन्नी की यूं बाहर निकल जाने पर हमेशा कुड़ा करती थी। यानी करीबन बुआ चूंकि पुराने ख्यालात की एक घर में काम करने वाली उनकी हम कह सकते हैं एक औरत है जो उनके घर में काम करती है, लेकिन क्योंकि वो उसने पुराना जमाना देखा होता है और वो अभी तक उन्हीं पुराने ख्यालात की कोशिश होती है कि उन्हीं को उन्हीं रिवायात को जो है जिंदा रखा जाए। लेकिन अब वो कह रही है कि जमाने जमाने की बात होती है, पहले जब भी आई यानी जो लड़कियां थी, जवान लड़कियां जब घरों से निकलती थी तो उनके साथ यानी अकेले उनको नहीं जाने दिया जाता था, बल्कि उनके साथ बहुत से आजमाई जो है उनको हिफाजत के लिए उनके साथ रवाना किया जाता था। और उसको यूं बहुत बुरा लगता था कि किस तरह छवि जो है वो निकल के खड़ी हो जाती है, बाहर निकल जाती है अकेले और चली जाती है बाहर। तो करीमन बुआ जो है वो हमेशा इस बात पर खुड़ा करती थी कि छन्नी को उस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि घर की खादमा थी, कुछ कह भी नहीं सकती। जैसे अभी आपने तारुफ में भी पढ़ा कि करीमन बुआ जो है वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन फिर भी उसको उसका जो किरदार है वो मुसलमानों के अच्छे वक्त की यानी रफ्ता जो मुसलमानों का अच्छा दौर था उसकी अक्कासी करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे भी वो कह रही है कि पिछले वक्त को याद करती है कि कितना अच्छा वक्त था, कितना पर्दा जो है वो किया जाता था। अच्छा जी।
आलिया ने कबाड़ों की ओर से झांक कर बाहर देखा। बड़े चचा साफ सुथरे बिस्तर पर पांव फैलाए सुकून से लेटे थे। सामने पीपल के घने वृक्ष से चांद की रोशनी उभरती हुई मालूम हो रही थी। आलिया का जी चाह रहा था कि वो भी बाहर चबूतरे पर जा बैठे। आलिया बेटी, एक पान खिला दो। बड़ी चीची ने फरमाइश की तो वो तख्त पर आ बैठी और पानदान खोलकर पान बनाने लगी। वो बाहर चबूतरे पर जाकर नहीं बैठ सकती, इसे अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। ठीक है, उसके दिल चाह रहा था कि वो भी बाहर जाकर खुली फिजा में बैठे, लेकिन चूंकि उस जमाने में इतना रिवाज नहीं था इस तरह का, तो वो कह रही कि उसको अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था कि किस तरह उसका दिल चाह रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही। मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। इसने मारे इकराम के सारे सारे का पल्लू सर पर डाल दिया। करीमन बुआ जल्दी जल्दी लालटेनें जला रही थी। शाम का वक्त है, ठीक है जी। अल्लाह शकील को खैरियत से रखियो। बड़ी चची दोनों हाथ फैलाकर दुआ करने लगी। वो इस वक्त कितनी दुखी और ममता से भरपूर नजर आ रही थी। जाहिर बात है, वालदा थी और हर वक्त जो है वो अपने बेटे की वापस लौटने की और उसकी खैरियत की दुआएं कर रही होती थी। तो यहाँ इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि इस वक्त भी वो बहुत ज्यादा दुखी जो है वो नजर आ रही है, और साफ नजर आ रहा था कि वो कितने अपने बच्चे के लिए परेशान थे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह इसी नावल को जारी रखेंगे अपने लेक्चर में। बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।